Hello and welcome students in our digital lecture of Subhash English School, and today we shall study about environmental study lesson 7, that is experiments with water. Chapter 7 experiments with water. इस चैप्टर में हम वाटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating in the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. आयशा डिनर के लिए वेट कर रही थी. आज उसकी मम्मी उसका फेवरेट फूड पूरी और स्पाइसी पोटैटो की सब्जी बना रही थी. वो देख रही थी कि उसकी मम्मी पूरी को बेलकर जब तेल में डालती है, हॉट ऑयल में, गरम तेल में, तो वो पूरी पहले तो वो डूब जाती है, लेकिन उसका वो फिर बाद में ऊपर तैरने लग जाती है. ऐसा देखकर उसने उस गीले गूथे हुए आटे से एक थोड़ा सा टुकड़ा लिया, उसको रोल किया और एक वाटर बॉल में उसको डाला. वो देखती है कि वो तो उसमें डूब गया. In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called. Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. शाम का समय था. जब आयशा नहाने गई थी तभी उसकी मम्मी ने आवाज लगाई कि आयशा जल्दी से आ जाओ. आयशा को बहुत जल्दी हो रही थी तो उसके हाथ से साबुन गिर जाता है. उसकी मम्मी बोलती है कि आज फिर तुमने साबुन पानी में डुबो दिया. जल्दी से इसको पानी से बाहर निकालो और सोप केस, दैट मीन्स साबुनदानी में रखो. आयशा जल्दी में थी तो उसके हाथ से वो सोप केस पानी में गिर जाती है और वो तैरने लग जाती है. Aisha gently put the soap in soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. जब साबुनदानी उसके हाथ से गिर जाती है तो वो देखती है कि वो पानी में तैरती है. तो उसको पानी में तैरता हुआ देख वो धीरे से उस साबुन को भी उस साबुनदानी में रख देती है. वो देखती है कि वो साबुनदानी फिर भी कंटिन्यू तैरती रहती है. तो वो सोचती है कि ये कैसे हो रहा है. Here is a poem. Why oh why? ऐसा क्यों? A wooden boat in the water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. But a needle light as a leaf, these as a pin, will sink right in. देखो चाचा इस सुई को, तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज को तैरता इसमें क्या है खूबी. An iron ship will also float through it's much heavier than my boat. Why does this happen? Let me think. लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में. तो इस पोयम में आपने देखा कि कितना भारी जहाज है फिर भी ये तैरता रहता है, और एक जो सुई होती है पतली सी तो वो डूब जाती है. तो ऐसा क्यों होता है ये सोचते हैं बच्चे. Dead Sea. All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in the sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. Dead Sea means मृत सागर. वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है. इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी से हम 300 ग्राम सॉल्ट निकाल सकते हैं. क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? यह कितना कड़वा लगेगा. सबसे मजे की बात तो यह है कि इस मृत सागर में हम
ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, लाइक अ पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये लड़का ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर सोया हुआ है, बट जब पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है तो उसमें कुछ भी चीजें डूबती नहीं है, वो तैरने लग जाती है। Racing drops. While doing the experiments, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, look, the teeny yellow oil drops can still be seen in the water. Aisha said, let's wait for some time and then see. जब आयशा और हमीद दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं पानी के साथ, तो वो आयशा कहती है कि पानी में ऑयल डिसॉल्व होता है, लेकिन हामिद उससे एग्री नहीं होता है। हामिद कहता है कि ऐसा नहीं होता है। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पानी में नमक ऑयल की कुछ बूंदें डालते हैं और उसको देखते हैं। आयशा कहती है कि देखो ये इसमें पानी में मिक्स नहीं हो रही है, ये अलग से तैरती हुई दिख रही है। आयशा बोलती है कि तुम थोड़ा रुको और इसको देखो, ये हमें अलग से दिखाई देगी। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक पानी की ग्लास में अगर नमक या शुगर को डालोगे तो वो पानी में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, उसमें मिल जाती है। बट आप जब उसमें ऑयल की बूंदें डालोगे तो वो उसमें अलग से तैरती हुई दिखाई देगी। हम उस वाटर और ऑयल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, बट जब हम उस पानी में जब सॉल्ट या शुगर को डालेंगे तो हम उसको वापस से अलग नहीं कर सकते। Dandi March. These incidents took place in 1930, before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By these laws, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhiji with several other people went on a yatra from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. दांडी मार्च, यह इंसिडेंट 1930 का है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब ब्रिटिशर्स ने लोगों को नमक बनाने से मना किया था और नमक के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में भी टैक्स लगाया हुआ था। गांधी जी ने सोचा कि नमक के बिना लोगों का गुजारा कैसे होगा, तो उनको नमक भी नहीं बनाने दिया जाता था। तो गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ करी और वो अहमदाबाद से शीशोर गुजरात दांडी नामक स्थान तक वो गए नमक बनाने के लिए। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. आपको पता है नमक कैसे बनाया जाता है? यह समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है और उसमें उन क्यारियों में समुद्र का पानी भर दिया जाता है। जब वहां पे सनलाइट यानी कि तेज धूप पड़ती है तो उस धूप में पानी सारा सूख जाता है और उन क्यारियों में नमक बचा रह जाता है। इस तरह से नमक बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा कि हॉट ऑयल में जब पूरी को पहले डालेंगे तो वो डूब जाती है, लेकिन बाद में वो तैरने लग जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी में डूबती है और कुछ चीजें तैरने लग जाती है। और इस चैप्टर में हमने डेड सी के बारे में पढ़ा, जिसमें हम किसी भी चीज को अगर हम उसमें डालेंगे तो वो उसमें डूबेगी नहीं। और हमने इस चैप्टर में यह भी सीखा कि वाटर में कौन सी चीजें सॉल्व होती है और कौन सी डिसॉल्व होती है। और लास्ट में हमने इस चैप्टर में गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उसमें यह बताया है कि किस तरह से गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया और नमक कानून को तोड़ा था। ओके, थैंक यू।